front. हाँ जी मैडम। So, good evening, everyone. Myself, Dr. Priyanka Lokre, and I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to our webinar series Guruji ke Saath Gurwar, Part 2. Today is our 106th lecture of this series, and it's my great pleasure to welcome our today's speaker, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. She has completed her BHMS from Srimati Venutai Yashwantrao Savanu Homeopathic Medical College, Kolhapur in 2003. She has clinical experience of over 20 years and she is practicing homeopathy since last 9 to 10 years. Dr. Mansi Patil is ever learning and ever growing homeopath. As we all know, she shares her daily rubric in many of our groups. She has deeper understanding of rubrics and is famous for her daily sharing of rubrics on huge Telegram, WhatsApp, as well as Facebook groups with thousands of follower homeopaths. She is one of the strongest pillars of our PHF organization. And so let's welcome Dr. Mansi Patil with huge round of applause. Please welcome. Welcome on. You can unmute and welcome. Welcome, वेलकम Mansi. Over बच्चन to जी। you. शी इज नोन एज बच्चन ऑफ पीएचएफ। Yes. या Thank you. चलो गुरु शुरू हो जा। Thank you so much, Priya, for such a warm welcome. Thank you so much, Liaquat sir, for creating this platform and allowing us to share whatever little knowledge we have. So let us let me share the screen. So first of all, gratitude to Dr. Samuel Hahnemann, gratitude to Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Sanjay Sehgal sir, Dr. Yogesh Sehgal sir, late Dr. Praful Vijaykar sir, and late Dr. Ashok Mohanty sir, and my heartfelt gratitude to my mentor, guide, guru, friend, Dr. Liaquat Namole sir. Thank you is a very little word for sir, but still, I take this opportunity to thank you, sir. Thank you so much. I have seen many gurus in the field of homeopathy as well as outside also. But the way sir teaches us and he has given us the vision for homeopathy to look forward. So thank you so much, sir. And starting today's session with Sir's blessing. So let us start. Uh, I have shared one case in our Ignited Minds group. I hope you all have uh, read the case. So let me summarize the case once again. Okay, so ये एक लेडी है 40 to 45 years की लेडी है एंड उनके ब्रेस्ट में कुछ लंप जैसा दिखा उनको तो उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो एक्चुअली इट वाज लाइक फाइब्रोएडिनोमा तो बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी लेकिन एज वी ऑल नो कि लेडीज को जब भी कहीं पर भी लंप दिखता है तो टेंशन हो ही जाती है तो उनको एज ए लेमैन या फिर कोई भी हो उनको लगता है कि ये सीए जैसा होगा क्योंकि सुनते रहते हैं आजू बाजू में तो वो मेरे पास में आई तो ये रेफर्ड किया हुआ केस है मेरे एक क्लासमेट है उन्होंने रेफर की थी इनको तो उनको आते ही मैंने पूछा कि बोलिए क्या है कंप्लेन क्या है आपकी तो उन्होंने स्टार्ट करने के बजाय उनके हस्बैंड ने स्टार्ट किया उन्होंने वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह मुझे दिखाए कि ये देखो सोनोग्राफी की है और उनको पेन हो रहा है ऐसे वैसे ये सब वो बताने लगे तो मैंने बोला कि पहले मैं पेशेंट से बात कर लेती हूँ फिर मैं आपसे भी बात करूंगी तो उनको पूछा पेशेंट को पूछा कि क्या है क्या हो रहा है बोलिए बताइए आप बताइए तो उन्होंने स्माइल किया और फिर बोला कि देखो ये मतलब ऐसे हाथ दिखा के बताया कि ये मुझे कुछ तो गांठ है और
उसमें पेन भी होता है। तो वो जो पेन है, वो पेन यहाँ से जाके शोल्डर तक जाता है, पीछे बैक में बहुत, मतलब नीचे तक बैक में जाता है। और बहुत ज्यादा पेन होता है, जब भी पेन होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो बार बार उनका ये था कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन मतलब। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, तो आपका कैसा रहता है, मूड कैसा रहता है आपका पेन के दौरान? तो उन्होंने बताया कि चिड़चिड़ होती है। तो मैंने बोला किस पर होती है चिड़चिड़? तो बोले कि घर में जो भी सामने आता है, हस्बैंड है, बच्चे है, जो भी आता है सामने उसके ऊपर मेरी चिड़चिड़ शुरू हो जाती है जब भी पेन होता है। तो मैंने पूछा उनसे पर्टिकुलरली कि जब भी आपको पेन होता है तभी चिड़चिड़ होती है, या फिर हर बार आपको मतलब किसी भी कारण से चिड़चिड़ होती है? तो बोली कि नहीं नहीं, जब भी पेन होती है तभी मुझे चिड़चिड़ होती है, और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है मेरी। तो हस्बैंड ने भी इस बात पर बताया कि हाँ, ये बहुत पेन पेन करती रहती है, और बहुत चिड़चिड़ करते हैं हम लोगों पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो और पूछा कि क्या आपको इससे दिक्कत क्या है, क्या लगता है आपको? तो बोली कि हाँ, डर लगता है, क्योंकि क्या हुआ था, उनके गांव में एक लेडी जिनको सीए डिटेक्ट हुआ, और वो मतलब थोड़े ही दिनों में उनकी डेथ हो गई। तो वो इनके ऊपर वो था कि उसकी वजह से मतलब मेरे भी ऐसा हो जाएगा, वो मतलब वो उन्होंने बताया नहीं सारी चीजें, और सीए भी बोला नहीं, मतलब मुंह से वो सीए का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, कैंसर है वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं। लेकिन बताया कि ऐसे वो उनकी डेथ हो गई थी, और तो अभी मुझे डर लग रहा है। ठीक है। और बार बार वो बोल रही थी कि आप मुझे चेक करो, ये देखो आप। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पहले आप मुझे बताओ, फिर मैं चेक करूंगी। चेक मैं करूंगी, लेकिन पहले आप मुझे सारी चीजें बताओ, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगी। तो फिर उन्होंने सब बताने के बाद खुद ही अपना ब्लाउज वगैरह ओपन किया, और मुझे बोला कि आप पहले मुझे चेक करो। तो चेक किया मैंने, वहां पे एक फाइब्रोइड नमक के जैसे ही था, लेकिन वो मूविंग था। तो मुझे भी समझ में आया कि इतना कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन शी वॉज सो स्कैर्ड अबाउट दैट। ओके। तो मैंने उनको मेडिसिन दी 30 पोटेंसी में, और उसके बाद उनको बोला था कि आप मुझे 15 दिन के बाद एक बारी दिखा देना। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फॉलोअप नहीं मिल सका किसी कारण। तो उसके बाद मतलब अभी इसको मुझे लगता है 7-8 महीने से ज्यादा हो गया। तो अभी उनका वापस फोन आया था, जिन्होंने मुझे रेफर किया था, उनका फोन आया था कि उनको वापस आपको दिखाना है। तो मैंने बोला क्या हुआ? वो बोले कि कुछ नहीं, उनको कुछ तो और परेशानी हो गई है। तो मैंने बोला कि वो कैसी है चीज जो जिसके लिए हमने मेडिसिन दी थी, तो वो कैसा है? तो वो बोले वो तो ठीक है। फिर मैंने पेशेंट के हस्बैंड को वापस कॉल किया पूछने के लिए कि कैसा है। तो वो बोले कि हाँ, हमको आना था, थोड़ी सी उनको कुछ सर्दी वगैरह कुछ है तकलीफ, तो उसके लिए हम लोग आने वाले थे, लेकिन आप नहीं थे, तो हम लोग जब आप वापस आएंगे तब हम लोग आके दिखा के जाएंगे। तो मैंने पूछा कि वो कैसे है, गार्ड वगैरह कैसे है? तो बोले कि अभी तो वो कुछ है ही नहीं है, अभी उसका कोई इश्यू नहीं है, वो ठीक है। अभी दूसरी चीज के लिए हम लोग आएंगे आपके पास। सो दिस इज द केस। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द केस। किसी को कुछ बोलना है, या फिर मैं सेकंड केस भी साथ में ही बोल दूं? हेलो। हेलो। क्योंकि रेमेडी सेम है। तो हेलो। हाँ ठीक है, सेकंड केस बोल दो। मैम सेकंड केस बोल दीजिए। ठीक है। तो ये भी एक लेडी की केस है, जो डॉक्टर ने रेफर किया था, उनकी माँ की ही केस है। तो उनकी एज 60 to 65 ईयर्स होगी। उनको गॉल स्टोन्स थे, उसका यूएसजी किया हुआ था, और उनको इपिगैस्ट्रिक रीजन में सीवियर पेन थे, और शोल्डर में भी पेन थे, राइट शोल्डर। ओके। तो वो लोग आए, और फिर मैंने उनको पूछा कि हाँ बताइए कैसे हो आप? तो उन्होंने अच्छे से स्माइल दी थोड़ा सा, और बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्योंकि मेरी और वो डॉक्टर साहब की बात हो चुकी थी पहले कि ऐसे ऐसे हम लोग आने वाले हैं और उनको ये तकलीफ है, और उन्होंने आते ही सब बता भी दिया था कि
उनको ऐसे ऐसे पेन होता है और बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा पेन है। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है आपको, क्या तकलीफ है? तो बोले कि "ओ, क्या होगी तकलीफ, तकलीफ ही है ना"। तो मैंने बोला कि अच्छा तकलीफ है, तो मुझे थोड़ा सा वो उनका ये अजीब लगा। फिर मैंने पूछा कि कैसे हो, आपका मूड कैसे रहता है, आप क्या करते हो जब भी आपको पेन होता है? तो फिर वापस वैसे ही जवाब आया उनका कि कैसा होगा, दुखता है ना वो। तो इतना ही केस मैंने लिया था, और मैंने उनको बोला कि ठीक है, फिर आपको आराम कैसे होता है, या फिर आप काम कैसे करते हो, इसके साथ मैनेज कैसे कर रहे हो पेन के साथ? तो उन्होंने बोला कि मैनेज क्या मतलब, अभी घर पे तो है, बहू वगैरह है, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, जितना मुझे काम होता है वो मैं काम करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो दर्द होता रहता है, तो दुखता है ना वो। और अगर उससे मतलब उन्होंने हाथ करके दिखाया कि अगर मैं ऐसा थोड़ा सा उससे रब करूं तो मुझे वो थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, और वो मुझे अच्छा लगता है। तो कोई मुझे, और भी कोई अगर वो करके दे थोड़ा सा प्रेशर से, तो मुझे अच्छा लगता है। और बस इतना सा ही केस है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस देखते हैं। दोनों केसेस की रेमेडी सेम है, सिंपल है, एकदम सिंपल सोचिए। यस, बोलना है किसी को? हेलो मैम, मैं बोलूं? यस प्लीज। मैम, दोनों केस में इरिटेबिलिटी दिख रही है। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग तो है ही। सेकंड केस में अभी जैसे आपने नरेट किया वैसे ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा कैरेसिंग वगैरह भी चाहिए। वो फर्स्ट केस में ऐसे दिखा नहीं। ओके। और और मुझे नेकेड वांट्स टू बी भी लगी सेकंड केस में इमिजिएटली दिखाया ओपन करके। व्हेन आप जब बोल रहे थे कि नहीं मैं बाद में देखती हूँ, शी वांटेड यू टू शो इट इमिजिएटली, लाइक ओके। आप एग्जामिन करो। इतनी क्यूरियोसिटी भी थी उसको, शायद एंजाइटी ज्यादा थी कि और कुछ ना हो। ओके, तो क्या आप कहाँ पहुंचे? मैंने फर्स्ट उसमें तो रूब्रिक्स लेके फास्फोरस आती है, ओके। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव नेकेड वांट्स टू बी, फास्फोरस फर्स्ट में आई थी तभी। ओके, रेमेडी ग्रुप पे नहीं आई है एक्चुअली, इतनी सिंपल है, पर पता नहीं ठीक है, नेकेड बॉन्ड्स में फंस गए सब लोग। हाँ, और सेकेंड ऐसे पल्सेटिला तरफ भी जा रहा है जैसे कैरेसिंग वगैरह चाहिए, पर इरिटेबिलिटी इज वेरी मार्क्ड इन बोथ केसेस। यस यस, तो शायद एकदम रेमेडी करेक्ट। उसी में से कुछ है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में से ही रेमेडी है। यस, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। और कोई? फर्स्ट केस में थोड़ा हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली भी लगा कि किसी ओके। और का उसने सुना तो उसको लगा कि मुझे भी शायद वो नहीं होगा करके। ओके, हॉरिबल रेमेडी क्या तक के है नहीं, इसमें? वो दूसरे को कैंसर हुआ है वो सोच के इसको भी एंजाइटी आ गई ना, अच्छा, तो वो लेकिन एक्सपायर हो पूरा गई रुब्रिक, वो जब लेडी। भी हम रुब्रिक यूज करते हैं तो पूरा रुब्रिक हमको समझना होता है ना, फिर हम उसको हाँ यूज हाँ, करते हैं। जब भी कोई रुब्रिक, ओके। तो उसमें पूरा रुब्रिक क्या है? हॉरिबल थिंग्स एंड सैड सैड स्टोरीज स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली। यस, यहाँ पे हाँ डर है, लेकिन प्रोफाउंड है हाँ, क्या? ओके और ओके, हॉरिबल एंजाइटी क्या है। है इसमें? हाँ, अभी सीए इज कॉमन, मतलब सीए कुछ ऐसा रहा भी नहीं है कि लोगों को उससे इतना मॉन्स्टर के जैसा डर लगे। तो वो डर दिखना चाहिए ना, उतना प्रोफाउंडली होना चाहिए। और सैड स्टोरी क्या है ओके। इसमें? वो एक्सपायर हो गई ना तो उसको चिंता हुई कि कहीं मैं भी ऐसा न, मुझे मेरे साथ भी ऐसा ना हो। हम्म,
हाँ, लेकिन वो डर का कारण है उसका, लेकिन ओके। और रेमेडी इस रूब्रिक में है एक्चुअली, लेकिन अच्छा। ये ठीक है, रूब्रिक मैंने नहीं ठीक है। लिया था। थैंक यू, थैंक यू। ओके। या ओके। और कोई? बहुत सिंपल है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग लिया, लेकिन इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग ये रूब्रिक आप हमेशा कंप्लीट रिपोर्टरी से लीजिए, क्योंकि मैम कंप्लीट में ज्यादा सिंथेसिस है में, रेमेडीज? यस, सिंथेसिस में नहीं है ये रेमेडी। ओके। और मैम हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट आर प्रोफाउंडली एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, तो इसमें भी उसका दूसरों का देख के उसको ये हो गया ना, हाँ, उसके लिए टेंशन लेकिन क्या ज्यादा आया। सोच सकते हैं, दूसरा कुछ और सोचो ना, उसके लिए उस पे क्यों अटक गए हो, उसके लिए और क्या सोच सकते हैं? मैम इम्प्रेशनेबल नहीं इसमें है ये। कोई इम्प्रेशनेबल, यस इम्प्रेशनेबल सोच सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक है क्या? लॉजिक की सुपरस्टिशियस हो, बात है? सुपरस्टिशियस हो सकता किसने बोला? है, अंकुश। अंकुश। यस, दिस इज सुपरस्टिशियस। इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि कोई भी सिस्ट आपको सीए हो जाए और फिर आप जो पेशेंट जिसकी आपने हिस्ट्री सुनी है वो उसके तरह आपका भी हो जाए। तो और उसने पेशेंट ने सीए बोला भी नहीं, तो सीए मतलब इतना डर सीए का रहता है कोई कोई पेशेंट्स में कि वो कैंसर का नाम भी नहीं लेते हैं, तो इसके लिए सुपरस्टिशियस रुब्रिक लेते हैं। ठीक है, भी दो रुब्रिक आ गए, और एक रुब्रिक, बस खत्म। मैम एंगर व्हेन obliged टू आंसरिंग, सेकंड कैसे? केस में कैसे? आपने पूछा क्या हुआ, तो बोले हाँ। दर्द ही तो हुआ, एकदम से बोली ना वो। हम्म। आपने पूछा ना, उससे क्वेश्चन पूछा तो एकदम से हम्म। एंग्री टोन में उसने आंसर दिया मैम। हम्म। एंगर व्हेन obliged टू आंसरिंग। एंगर व्हेन obliged टू आंसर, ओके, ठीक है। और मैम इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन ले सकते हैं क्या उसके लिए? अब बताओ, हेलो। आप बताओ। जब उसने पूछा मतलब क्या होगा, पेन ही है ना, तो हम्म। वहां पे इरिटेबिलिटी लगा मुझे कि ओके। क्वेश्चन पूछने पर वहां पे दर्द ही होगा ना, क्या होगा ऐसे। हम्म। तो और वहां पे मुझे इरिटेबिलिटी क्वेश्चन लगा, और फर्स्ट केस में एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट लगा कि किसी का सुनने के बाद उसको भी डर इतना महसूस हुआ, तो उसकी वजह से वो आ गई। और जब उसको ठीक लगा तो उसने फिर कांटेक्ट भी नहीं किया, और बाद में जब उससे तकलीफ हुई, मतलब जब नीड है तभी आ रही है वो। ओके, तो बाद में उसके लिए क्या? अनग्रेटफुल भी लगी ना, अनग्रेटफुल भी लगी कि जब उसका तकलीफ ठीक हो गया तब उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि नहीं उसको किया। ठीक है। हम्म। तो ओके। ये लगा। हम्म। और सेकंड केस में कैरिड डिजायर टू बी कैरिड केयर्स भी लगा, वो केयर्स वाला ओके। रूब्रिक भी सेकंड केस में लगा मुझे। ओके, तो तो क्या पल्सेटिला ही रेमेडी लगी क्या है? मुझे सेकंड केस में। अच्छा, पल्सेटिला लगी मैम सेकंड केस और में। फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में नहीं, मतलब अभी तक नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना है? फर्स्ट केस रस्टॉक्स लग रहे हैं। रेस्टॉक्स, ओके। हाँ, दोनों फिर केसेस की रेमेडी सेम है। सेम है। रेस्टॉक्स क्यों लग रहा है? थोड़ा फिर सुपरस्टिशियस लग रहा है वो। अच्छा, ओके, तो सिंगल रेस्टॉक्स आ रहा है। ओके। हाँ, नहीं, उसका मैंने रुब्रिक खाली सुपरस्टिशियस लिया था, क्योंकि
उसमें हाँ मुझे कुछ लॉजिक नहीं लगा उसके से में। हाँ तो सुपरस्टिशियस और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, ये दोनों रूब्रिक कंफर्म है। naked wants to be third one. नेकेड वांट्स टू बी मैंने नहीं लिया। Okay. Okay. आई विल एक्सप्लेन दैट हाँ. क्यों Okay. नहीं लिया। Yeah. Yeah. All right. Yeah. अगर दोनों की रेमेडी सेम है तो फर्स्ट भी पल्सेटिला. अच्छा। नेपाल से टीला नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, रेस्टॉक्स भी नहीं है। और कुछ अलग, कुछ इससे अलग कुछ किसी का है? फर्स्ट केस में और एक फिजिकल रूब्रिक हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, चेस्ट में जाके ट्यूमर मैमे करके रूब्रिक है, तो वी कैन टेक दैट रूब्रिक एज अ पैथोलॉजिकल रूब्रिक। जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स को देखा है मैंने आजकल कि वो पैथोलॉजिकल रूब्रिक लेते हैं, तो मैंने जस्ट कंफर्म करने के लिए ये रेमेडी में है कि नहीं है, इसके लिए मैंने वो रूब्रिक डाल के देखा था, तो इसमें वो है। और देखो टोन कैसा रहता है पेशेंट का, पेशेंट के टोन से हम थोड़ा बहुत एक दो रूब्रिक उसमें से भी आ जाते हैं। ये तो मतलब दिस रूब्रिक इज स्पेशल, जो हमने सर से सीखा है, तो ये ट्रेडमार्क बोल सकते हैं रूब्रिक। तो ये जो टोन होता है ना पेशेंट का, अगर पेन में देखो कैसे होगा, पेन में बंदा कैसे होगा, इरिटेबल होगा, और उसके टोन को हम क्या बोलेंगे? जो बंदा चिड़चिड़ करता है और दूसरे लोगों को भी लगता है, आजू बाजू के लोगों को लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, पेन के बारे में ही उसकी चिड़चिड़ है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसका टोन देखो। नेक्स्ट केस में भी जो लेडी है, तो उन्होंने भी बोला दुखता है ना, दुखते है ना, उन्होंने ऐसे ये केस मराठी में लिया हुआ है, स्नैपिश तो स्नैपिश ले मराठी सकते में हैं। स्नैपिश स्नैपिश मतलब कट करना, एकदम से हाँ तोड़ देना उसको। 40 ले सकते हैं माँ। 40 भी ले सकते हैं, लेकिन देखो स्माइल करके बोल रहे पेशेंट, दोनों भी पेशेंट में स्माइल भी है, उसके साथ इरिटेशन भी है। और कंटेम्प्ट नहीं ले सकते ना, बिकॉज अथॉरिटी सामने बैठी है और उनको ऐसे चिढ़कर जवाब दे रहे हैं। यस, थोड़ा सा आप नजदीक जा रहे हो अभी, थोड़ा सा नजदीक जा रहे हो। वो कैसा होता है ना, जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं और उसको वो बात कैसे लगी, मैंने पूछा, अगर आप पेन में हो और मैंने पूछा कि कैसे है, कैसे दुख रहा है, कब से दुख रहा है, अगर आप उस बारे में पेशेंट को पूछ रहे हो और वो बंदा पेन में है, तो वो जवाब उसका आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? पोलाइटली होगा जवाब? नहीं होगा, लाइक नक्सवामी का नो। जैसा ही होगा, अरे बाबा मुझे दवाई दे दो, यस। डोंट आस्क मी फॉर द क्वेश्चंस। और तो ये उसको बात ऐसे लगी ना, क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? इम्पेशेंट नहीं है, मूड रिपल्सिव, क्यों? जवाब नहीं देना है, लेकिन जवाब दिया उन्होंने, रिपेल नहीं किया मेरे क्वेश्चन को, उन्होंने रिपेल नहीं किया कि आप मत पूछो मुझसे, ये मत पूछो। तो वो जो फीलिंग है ना, वो उनके टोन में जो बात थी कि ये क्या बोल रहे हो आप, और उसके बाद उन्होंने स्माइल भी करी कि क्या होगा, दुखेगा ही ना, अभी इतना दुख रहा है, क्या आप पूछ रहे हो, दुखते पे कैसे लगता है, ऐसे क्या पूछ रहे हो आप? तो ये बात कैसी है? मॉकिंग होगा क्या मैम? ओके, मॉकिंग, मॉकिंग, आगे जाओ थोड़ा। रिडिक्यूल, फैशन टू। यस, दिस इज मॉकिंग, रिडिक्यूल, पैशन टू। फैशन टू। ओके, अभी बताओ रेमेडी, यस मैम। अभी फटक से आ जाएगी। डालो रूब्रिक, डालो, मैं डालू क्या? और ये टोन जो है ना, वो टोन को बताओ ना, एक रूब्रिक है जो
मैम लेकेसिस है। क्यों? जागृति भी लेकेसिस बोल रही है। क्यों लेकेसिस? जी मैम 3 रूब्रिक डाले मैंने, मोकिंग, रिडिकुलस, पेसिंग टू, सुपरस्टिशियस और ट्यूमर मामी। हम्म और लेकेसिस आ रहा है मैम सिंगल। तो आने दो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? जी मैम। लेकेसिस ही है वो। और आप अगर कंप्लीट रेपर्टरी में देखेंगे, ये रूब्रिक इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, तो उसमें लेकेसिस है कंप्लीट रेपर्टरी में। ठीक है, उसका आपको मैं ये दिखाती हूँ। ठीक है, सो दोनों रेमेडीज में मैंने लेकेसिस दिया था। और ये जो दूसरी लेडी है, मेरे फ्रेंड की मम्मी है, तो उनको भी कल मैंने कॉल करके पूछा था, क्योंकि मुझे केस ये करना था। तो कैसा है पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो इपिगैस्ट्रिक का जो पेन था, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। शोल्डर का पेन है ऑफ एंड ऑन, लेकिन अभी ठीक है। और वो दूसरी पहली वाली लड़ी का तो फॉलोअप मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैं आपको ये रूब्रिक्स दिखाती हूँ। डाउट है किसी को? और एक केस, और जो करेस जो आप बोल रहे थे ना, करेसिंग करने से उनको अच्छा लगता है, सो दैट इज नॉट करेसिंग एक्चुअली। उसको मैंने लिया था मैग्नेटेड डिजायर। मैग्नेटाइज्ड। यस, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटाइज्ड डिजायर फॉर, तो उनको वो थोड़ा सा प्रेशर से, मतलब हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दिया, तो उनको वो पेन थोड़ा सा रिलीफ लगता है। वो उनकी इच्छा है कि वो कोई आके उनको करे, तो वो अच्छा लगता है। बूढ़े लोगों की एक ये होती है कि कोई आके मुझसे बात करे, मुझे पूछे। अगर बीमार है तो और ज्यादा लगता है कि कोई आकर उनको पूछे कि कैसी है तबीयत वगैरह। ठीक है, तो वो भी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइज डिजायर होता है। सो और इसमें भी सेकंड केस में भी मैंने जो पैथोलॉजिकल रूब्रिक है गॉलस्टोन का, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि लेकेसिस में कैसे, मतलब देना है कि नहीं देना है। तो रेपर्टरी में देखा तो एब्डामेन गॉलस्टोन्स में उसमें भी लेकेसिस है। तो थोड़ा सा हम लेकेसिस को पढ़ते हैं। लेकेसिस इज वेरी कॉमन, मतलब हम उसको ये नहीं कर पाते। मुझे लगा आज 2 मिनट में रेमेडी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। कोई बात नहीं। मैडम, तो ये कैरेसिंग थोड़ा आप इलेबोरेट करेंगे? कैरेसिंग, कैरेसिंग और आपने कैरेसिंग मैग्नेटाइज मतलब क्या लिया होता है? तो। हाँ, कैरेसिंग क्या होता है? सहलाना होता है ना। हाँ, ओके। हम्म यस, तो या। हाँ। सहलाने से ज्यादा, मैंने वही बोला ना, अभी बोला कि जो लोग बीमार है, बूढ़े लोग जो बीमार है खास करके, तो उनकी इच्छा रहती है कि आप जाके उनको पूछो, तो ये भी मैग्नेटिज्म ही होता है। तो ये इसमें डिजायर आती है, करेसिंग, सॉरी, मैग्नेटाइज्ड डिजायर। तो उनकी वो इच्छा रहती है कि कोई आके मुझे थोड़ा सा हेल्प करे, या फिर मुझे थोड़ा सा सहलाए, तो वो अच्छा लगता है उनको। खाली प्रेशर, मतलब खाली फिजिकली नहीं, मेंटली भी। तो करेसिंग में खाली हम जैसे पेट को करते हैं या फिर छोटे बच्चों को करते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मैग्नेटाइज लिया था। मैग्नेटाइज नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जो पेशेंट का टोन है ना, वो मैं बोल रही थी कि दुखता है, दुखता है, जो बोलते रहते हैं ना, मतलब जैसे मैंने बोला कि घर वाले भी बोलते हैं कि ये पेशेंट हमेशा इसका चलता रहता है, मतलब जरा सा भी इसको दुखा, कुछ भी उसको कंप्लेंट हुई कि इसका रोना चालू हो जाता है। ऐसे बोलते हैं लैमेंटिंग है ना। मैम। यस, लेमेंटिंग पेन अबाउट। तो दोनों केसेस में लेमेंटिंग रूब्रिक आएगा। ठीक है, ओके, ओके। तो दोनों केसेस में लेमेंटिंग। और एक जो आप बोल रहे थे नेकेड वांट्स टू बी, तो वो क्या है? वो मैंने नहीं लिया। नेकेड वांट्स टू बी में लेकेसिस नहीं है, फास्फोरस है और सारी बहुत सारी मेडिसिन है, हायोस है। ठीक है, तो
वो क्यों नहीं लेना है? एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा कि ये हायोस है या फिर लेकेसिस है, तो क्यों नहीं लिया। और उसके थोड़ा सा सटल अगर हम जाएंगे तो क्या रहता है ना, जैसे मैंने बोला वो बंदी डरी हुई थी, स्केर्ड थी ना कि ये क्या है, ये क्या हो गया मुझे अचानक, या फिर किसी का देखते हैं तो और वो डर लग जाता है। तो उनको क्या था कि मैं जाके उनको पहले वो चेक करूं ताकि मैं समझ पाऊं कि उसमें कुछ और चीज तो नहीं है ना, मतलब खाली वो ट्यूमर है या फिर सिस्ट है जो भी है, वो उनको ये चाहिए था मेरे से कि इसमें और कुछ ज्यादा डरने वाली बात नहीं हो। ठीक है, तो ये सटल लेवल पे फियर बिट्रेयल है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे और ज्यादा कुछ बड़ी बीमारी ना कुछ हो जाए। ये सारी बातें उन्होंने बताई भी नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से वो समझ आया। जैसे उन्होंने वो स्टोरी, मतलब वो लेडी की बात बताई कि ये ऐसा हो गया था और वो लेडी एक्सपायर हो गई वगैरह, वो जो सारी चीजें थी, तो उनके फेस पे वो एक्सप्रेशन था कि शायद कहीं ना कहीं वो फियर है कि इसमें से ये छोटी गांठ है अभी, लेकिन इसमें से कुछ ज्यादा ना हो जाए। तो इसलिए आप पहले मुझे चेक करके ये बताओ कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, नॉर्मल है सब। तो ये उनका सटल फियर बिट्रेल था। मैंने लिया नहीं रूब्रिक, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाली चीज थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी फिर ये लेना है कि नहीं लेना है, नेकेड वांट्स टू बी, लेकिन उसमें है ही नहीं लेकेसिस। और फिर वो केस सारा क्योंकि मैच नहीं होता है ना, फिर रूब्रिक्स की कड़ी हमको जोड़नी जो होती है वो नहीं जुड़ पाती, और वो अपना प्रिस्क्रिप्शन ही गलत हो जाता। तो ये सटल चीजें भी हमको देखनी चाहिए कि ये पेशेंट बियॉन्ड द लाइंस, जैसे सर बोलते हैं, तो अगर थोड़ा सा एम्पथाइज करें हम पेशेंट के साथ तो वो अपने को समझ में आता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे ओके। हमें लेकेसिस हमेशा मालूम है कि बहुत वाइवेशियस रहता है, अम्यूजमेंट वाला रहता है, तो ऐसा कुछ वाइवेसिटी भी इस लेडी में नहीं लगी। ऑल्दो देर वॉज नॉट अ वेरी मेजर इलनेस, ऐसा कुछ नहीं था अभी हम्म। उसको, फिर भी हम्म। देर वॉज वाइवेसिटी कहीं पे भी नहीं लगी, अम्यूजमेंट भी कहीं पे भी नहीं दिखा। तो ऐसे लेकेसिस एकदम दिमाग में आती नहीं है। इसीलिए ना, क्योंकि हम इमेज फिक्सिंग करते हैं। हम्म। वाइवाशियस है तो लेकेसिस है, कॉकवेटिश है तो लेकेसिस है, हाँ हाँ। अम्यूजमेंट है तो लेकेसिस है। वही मैं राइट। आगे वही बताने वाली हूँ आज, क्योंकि ओके ओके। हमेशा यही होता है अपने साथ कि हम इमेज फिक्सिंग करते हैं। मॉरल्स है तो इग्नेशिया है, हाँ। जैसे हमने उनको स्टैम्प कर दिया, फिक्स थप्पा मार स्टैम्प, हाँ। दिया, फिक्स कर हाँ दिया, लेबल। तो ये कभी हाँ। फिक्स नहीं करना है। क्योंकि देखो अभी ओके। हम नेकेड वांट्स टू बी, उसने निकाला, कपड़े निकाले तो चलो हो गया हाँ। हायोसाइमस अपना। हाँ, क्योंकि ये Mansi, सेमलेस है। हम्म। can I say यस। something? यस सर, यस। Sorry. नहीं बेटा सर, दिमाग में आती नहीं ना, तो होम्योपैथी में दिमाग का काम कम करेगा, तो फिर आपकी रेमेडी सही आएगी। यस सर, और यस सर। दिमाग कम इस्तेमाल करोगे तो आपकी रेमेडी सही आएगी। होम्योपैथी का ये मेन चीज है ना। दिमाग से सोचोगे तो फिर रेमेडी तक जल्दी नहीं पहुंचोगे। हम्म। कंटिन्यू प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं सर। तो दिस वाज फर्स्ट केस का एनालिसिस, और ये सेकंड केस का। सो लेकेसिस भले ही कॉमन है, लेकिन हम कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है ना कि ये लेकेसिस लग तो रहा है लेकिन इसमें ये नहीं है, जैसे आपने बोला अभी वाइवेशियस नहीं है, अम्यूजमेंट नहीं है, या फिर जो भी कॉमन जो हम लोग समझते हैं कि ये इससे हम ये रेमेडी सीधे दे देंगे लेकेसिस पेशेंट को, तो वो थोड़ा सा वही बिलीव तोड़ना है इसके लिए। सो ये कॉमन है, ये स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये इमेज डाल के रखी है। इसमें नटशेल में पूरा पूरी पर्सनालिटी लेकेसिस की दी हुई है। मतलब जैसे
डिजायर्स, एवर्जन्स, जनरल जो भी है, फिजिकल जनरल्स, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वो सब ये पिक्चर में है। ये पिक्चर मैं डाल देती हूँ अपने ग्रुप पे, तो आप देख लेना, बाद में आराम से पढ़ लेना। ठीक है। तो कॉमनली हम कैसे लेकेसिस को समझते हैं, जैसे आपने अभी बताया वाइवेशियस है, तो ये और सारे कुछ चीजें हैं जिससे हम लेकेसिस को समझते हैं। और कुछ है इसमें ऐड करना है आपको? कौन सी चीज पे बेस करके आप लेकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं? केयरफुल फ्रिवोलस है। होता है, कॉशियस होता है, लकेशियस इज मोर कॉशियस एंड केयरफुल, केयरिंग ओके। है। ओके। और और क्या क्वालिटी होती है, और या फिर जिससे हम हम फौरन? लैमेंटिंग लैमेंटिंग जेलसी भी भी है। बहुत लेमेंटिंग। होता है। यस। यस, लेमेंटिंग बहुत होता है। और क्यूरियस होता है ना, लेकेसिस क्यूरियस होता है, चीयरफुल होता है, सस्पिशियस भी रहता है मैम। सस्पिशियस रहता है, कॉकेटिश भी रहता है। कॉकवेटिश रहता है। और थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो जेलसी, जेलसी बहुत ज्यादा रहती है ना। जेलसी को फिर, ये जेलसी का थप्पा भी हमने लेकेसिस को दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जेलस रेमेडी मटरिया मेडिका की अगर कोई है तो कौन बोल सकता है? हाय सेकमस। नहीं। एपिस। नहीं। बोलो, आप सर्च करो, जब तक सेशन खत्म होता है तब तक आप बता देना मुझे, सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहने दो। ठीक है। हिस्टीरिया के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि हिस्टीरिया के बहुत सारे रूब्रिक्स इसमें है, लेकेसिस में। मैनिया है, और इंसैनिटी है, और जेलसी, इतनी जेलसी होती है कि इंसैनिटी तक जाती है जेलसी लेकेसिस की, इसीलिए हम लेकेसिस को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि जेलसी का, जैसे हम बोलते हैं क्वीन बोल सकते हैं उसको। और उसकी जेलसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर आप केंट में पढ़ोगे या फिर एम एल टाइलर की जो बुक है उसमें, अगर मैथमेटिका की बुक्स में पढ़ोगे तो गर्ल्स में बहुत ज्यादा जेलसी है। मतलब जेलसी किस वजह से आती है, जेलसी की वजह होती है एक तो ये जो लेकेसिस वाले लोग होते हैं वो पैशनेट होते हैं किस बारे में? लव के लिए। पजेसिव होते हैं अपने पार्टनर के लिए, इतना तक कि बच्चों में, मतलब स्कूल गर्ल्स में भी, वो जो लड़की है वो पजेसिव है अपने फ्रेंड के लिए, गर्ल फ्रेंड के लिए, जो भी स्कूल में बच्चे रहती है। तो उसको ये रहता है कि उसने मेरे अलावा किसी और से बात भी नहीं करनी है। ऐसी एक केस दी हुई है एम एल टाइलर के बुक में, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो इतनी ज्यादा जेलसी की वजह होती है। तो इंसैनिटी भी जेलसी के साथ रिलेट कर सकते हैं, हिस्टेरिया भी रिलेट कर सकते हैं, मैनिया भी रिलेट कर सकते हैं, डिलीरियम भी रिलेट कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा जेलसी, हर चीज में जेलसी आ जाती है। और डिल्यूजन और डिलीरियम, डिल्यूजन्स तो बहुत सारे हैं, मतलब एक लेक्चर में शायद मैं बोल भी ना पाऊँ कि इतने सारे डिल्यूजन्स लेकेसिस में है। डिलीरियम और डिल्यूजन्स, और दूसरा एक जो पर्टिकुलर थिंग है, दैट इज कंजेशन और कंस्ट्रिक्शन। तो ये एम एल टाइलर ने लिखा है कि वो कंस्ट्रक्शन, मतलब दो बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स लेकेसिस के उन्होंने बताए हैं कि एक तो है थ्रोट और दूसरा है माइंड। ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा उसकी प्रोमिनेंट एक्शन बताई गई है। बाकी के सारे है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्किन है, तो इस पर भी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, जो थ्रोट है एंड माइंड है। तो माइंड के ये सारे रुब्रिक तो हमने देख लिए, इसमें बहुत सारे रुब्रिक्स आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने कंजेशन का प्रोमिनेंटली लिया यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे लगा कि हम साइकोडायनामिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइकेसिस को मेन चीज क्या बॉदर करती है? तो
रिस्ट्रिक्शन जो, तो किसी भी चीज पे अगर रिस्ट्रिक्शन आती है तो उसका स्क्रू सटक जाता है लेकेसिस का, तो उसकी वजह से जो बॉडी पर भी सिम्टम आते हैं, तो वो थ्रोट पे बहुत सारे केसेस भी उन्होंने दिए हुए हैं। आप बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो डिप्थेरिया के लिए स्पेसिफिकली जैसे देते थे, तो वो देते थे। लेकिन तो मुझे ऐसे लगा कि ये थ्रोट क्या होता है ना, थ्रोट से हम क्या करते हैं, थ्रोट एंड नेक, वहां से हमारी आवाज बाहर निकलती है। तो जब जहां पर भी वो आवाज को डोमिनेट किया जाता है, दमन किया जाता है उसका, या फिर आपको एक्सप्रेस करने को नहीं मिलता है, तो दैट टाइम यू गेट एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू दैट ऑर्गन। तो जैसे ही थ्रोट से ही हमको एक्सप्रेस करना होता है, तो लेकेसिस बोलता है ना ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं लोक्वेशियस होता है लेकेसिस ज्यादा। तो उसका वो जो उसका लोकेसिटी का जो कारण है वो भी है एक्सप्रेशन, मतलब उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, तो अगर उसका वेंट आउट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें अगेन रिस्ट्रिक्शन होता है, या फिर जो रिप्रेशन होता है वो सेक्सुअल एनर्जी का, उसकी वजह से वो वेंट आउट नहीं हो पाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं से तो उसको एक्सप्रेस करना है, तो इसकी वजह से लेकेसिस लोक्वेशियस रहता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज, एब्डोमेन पे भी जैसे हमने फिजिकल में देखते हैं ना कि नेक पे नहीं चाहिए, टाइट क्लोथिंग नहीं चाहिए, एब्डोमेन में टाइट क्लोथिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और वो फ्रीली जो फ्री एक्सप्रेशन जो रहता है वो नहीं होता है। तो इसकी वजह से लेकेसिस को कंस्ट्रिक्शन, या फिर जो कंजेशन जो हार्ट में भी है, तो वो भी कंजेशन की वजह वही होती है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स फ्रॉम हम एक्चुअली एक्यूट केस में ही लेते हैं, क्रॉनिक केस में नहीं लेते ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब भी कोई अगर कोई वजह है, और भले वो 4-5 साल के बाद वो पेशेंट को वो कंप्लेंट आई है, लेकिन हम जैसे पीछे जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि इस वजह से या फिर ऐसा कुछ हुआ था पास में, तो उसके बाद ही ये कंप्लेंट स्टार्ट हो रही है। तो वहां पर भी हम ये एलिमेंट्स फ्रॉम ले सकते हैं। तो ये आई थिंक बहुत सारे हैं, 37 एलिमेंट्स फ्रॉम है। तो इसमें अगेन वी कैन सी एक्साइटमेंट सप्रेस्ड, जैसे सप्रेशन, जहां पर भी सप्रेशन है या फिर रिप्रेशन बोल सकते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है, डिस्कॉर्ड्स है, इगोटिज्म है, डेथ ऑफ लव्ड वंस, चाइल्ड ऑफ और चिल्ड्रन इन, देन डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट, इसकी वजह से भी इसको कंप्लेंट्स आ सकते हैं। फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, जैसे हमने पहले केस में देखा, ये हम ले सकते हैं कि उसकी वजह से, लेकिन कंप्लेंट उसकी वजह से नहीं आई है उनको। ठीक है, क्योंकि वो फ्राइट है, लेकिन अ, वो दूसरे का है, वो डर गई है, लेकिन उसको डरने के बाद नहीं वो कंप्लेंट आई है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट वाला रूब्रिक किसी ने बोला था, लेकिन नहीं लिया है वो। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, अगेन एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, लव, डिसअपॉइंटेड, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम mortification, एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग बाय वंस फादर, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस। और ये जनरल्स के कुछ कंप्लेंट्स है। अगेन सी suppressed complaints, elements from suppressed complaints, elements from menopause, elements from masturbation, elements from alcoholic drinks। तो ये सारे अगर कहीं पर भी हमें ये मिल जाता है केस में, तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म कर लेना चाहिए पेशेंट से कि ये इसी की वजह से ये कंप्लेंट्स आई हुई है। ठीक है। सो एक बुक है और फिलिप बेली का, अगर आप पढ़ो उसमें, तो उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने लेकेसिस को दिया है। तो उन्होंने बोला है कि उसका एक टैगलाइन उसको दी है, सेक्सुअल टेंशन करके। तो क्यों ऐसा उन्होंने बोला है?
जो लेकेसिस को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कॉइल्ड सरपेंट रहता है ना, तो यहाँ पर भी अपने बॉडी में भी एक जगह रहती है, तो उसको चक्रास बोलते हैं। अगर कोई इसके बारे में ज्यादा जानता है तो वो आप बता सकते हैं, या फिर जाके पढ़ भी सकते हैं। तो ये हठ योगा का एक ये रहता है। तो उसको जब ये जो एनर्जी रहती है, सरपेंट है लेकिन उसमें कॉइल्ड एनर्जी रहती है, एक डॉर्मेंट एनर्जी रहती है। जब भी उसको अवेकनिंग करते हैं तो उसकी वजह से वो अराउज करके वो बंदा, उसकी जो अनकॉन्शियस लेवल है, तो उसको वो आगे लेते जाते कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाता है। जब वो एनर्जी पूरा सर तक, मतलब क्राउन तक पहुंच जाती है, तो वहां पे अवेकनिंग होती है। मतलब वो ऐसे एक थेरेपी जैसे बोलते हैं हटोगा में। तो यहाँ पर भी ये लेकेसिस जो पेशेंट है उनमें भी ये एनर्जी जो है वो डॉर्मेंट रहती है। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, सेक्सुअल एनर्जी जो है, तो वो डॉर्मेंट रहती है। तो इसमें लेकेसिस में क्या होता है कि वो सप्रेस रिप्रेस हो जाती है वो एनर्जी, किसी भी वजह से। जैसे बोलते हैं ना कि हम्म, हमारे मतलब जैसे इंडियन कल्चर में सेक्स करना अलाउड नहीं है बिफोर मैरिज। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोहिबिशन आ जाती है और वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और वो रिप्रेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लेकेसिस की पर्सनालिटी है, जैसे अडोलसेंट में अगर उसको वो सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं तो वो रिप्रेस होना शुरू हो जाती है उसकी एनर्जी, और उसके जो सारे कंप्लेंट्स है वो आ जाने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो फुलफिल होता है, अगर वो एनर्जी सेटिस्फाई होती है, तो क्या होता है कि वो बंदा शांत रहता है। जैसे हमने देखा कि एनर्जी अगर वो अवेकनिंग होती है तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो बंदा ब्लिस तक जाता है, मतलब ट्रांक्विलिटी के लेवल पे पहुंच जाता है। अगर अ, ये एनर्जी पहले सेटिस्फाई हुई है तो, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा जो इमेज ब्रेकिंग जो बोलते हैं हम, तो वो चीजें उन्होंने दी हुई है। तो उन्होंने एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन बोला है, मतलब कि अगर जिनकी एनर्जी जो, जैसे बोला कि सेक्सुअल एनर्जी है या फिर और भी है मटेरियल एनर्जी कोई भी, वो रिप्रेस हुई है या फिर, तो उसकी वजह से ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि उनको वो वेंट चाहिए होता है, वो एनर्जी को बाहर जाने की जरूरत होती है। तो उसकी वजह से ये सारी जो लेकेसिस के क्वालिटीज बोल सकते हैं आप, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बोल सकते हैं, वो सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि लोक्वेसिटी क्यों होती है, लोक्वेशियस क्यों होते हैं लेकेसिस पर्सन्स, या फिर वाइवेशियस क्यों होते हैं, पैशनेट तो होते ही है वो। और उनके लिए जो लव वाला जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा उनके लिए पैशनेट होता है। ये लोग एम्बिशियस भी होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशन की तरफ भी पैशनेट होते हैं। और दूसरा एग्जैक्ट अपोजिट चीज उन्होंने बोली है कि जब भी वो बंदे, जैसे एनर्जी उनकी सेटिस्फाई हुई है, तो वो एकदम टोटली अपोजिट हो जाते हैं, जैसे टैसिटर्निटी में जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो बात नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं, सेंटिमेंटल रहते हैं। और एक चीज फिलिप बेली ने बोली है कि उनका जो लेकेसिस को उन्होंने कंपेयर किया है फॉस्फोरस, मेडोरिनम, इग्निशिया, नक्सोमिका के साथ। तो उन्होंने बोला है कि फॉस्फोरस इज सुपरफिशियल, लेकिन लेकेसिस बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और बहुत ज्यादा डीप होता है। तो उनकी जो एनर्जी है तो वो क्रिएटिव एनर्जी में बदल जाती है, और उनके इसमें आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड आ जाता है। तो वो आर्ट उनका कौन से फॉर्म में है, तो वो पोएम्स करते हैं, वर्सेस बोलते हैं। तो ये फॉर्म में उनकी एनर्जी ज्यादातर बाहर आती है, वेंट आउट होती है। सेंटिमेंटल भी होते हैं, तो जैसे हमने देखा कि एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको लव डिसअपॉइंटमेंट से, तो उसके बाद हो सकता है ग्रीक में या फिर इसमें ये लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ठीक है।
तो जैसे बोला कि इमेज फिक्सिंग हमने कर रखी है कि ऐसा बंदा होगा तो ही लेकेसिस होगा, जैसे कॉकविटिश होगा या फिर वाइवाइशियस होगा, उसमें अम्यूजमेंट डिजायर होगी, उसमें फ्रिवोलसनेस होगा, तभी हम लेकेसिस को सोच सकते हैं। लेकिन ये भी चीजें जैसे अपोजिट एकदम पिक्चर है। तो इंटेलिजेंट है लेकेसिस, इंटेलेक्चुअल भी है। इंटेलिजेंट में चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन करके रुब्रिक है, उसमें 3 या 4 ही मेडिसिन है। विटी एक इंटेलिजेंट का ही ये बोल सकते हैं, एस्पेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि विटी लोग मतलब जो फौरन जवाब दे देते हैं किसी भी चीज का, और वो भी थोड़ा सा ह्यूमरस वे में, तो ये लोग इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं। देन इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे अभी बोला मैंने, आर्टिस्टिक होते हैं। तो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड वाला रुब्रिक कंप्लीट डायनेमिक्स में है, बाकी कोई रिपोर्टरी में नहीं मिला मुझे। ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, लेकिन सेंसिटिव टू टच होता है, सेंसिटिव टू नॉइज, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें ओवर सेंसिटिवनेस में आती है। सेंटिमेंटल में जैसे बोला अभी, वर्सेस बोलते हैं या फिर पोएम्स वगैरह लिखते हैं। अगेन एंजाइटी कंसाइंस है। केयरिंग है, तो केयरिंग के बारे में हम कभी लेकेसिस को सोचते नहीं है, लेकिन केयर के बहुत सारे रुब्रिक्स इसमें है। केयर्सफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, लव फॉर फैमिली, बहुत ज्यादा वो फैमिली की केयर करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। और इंट्यूशन वाली एक चीज है कि बहुत ज्यादा ये हाईली इंट्यूटिव होते हैं, और उनके सेंसेस, जैसे रुब्रिक भी है सेंसेस एक्यूट करके, तो बहुत ज्यादा एक्यूट सेंसेस रहते हैं उनके, और आगे का वो देख पाते हैं, क्लेयरवॉयंस उनको एक वो एबिलिटी बोल सकते हैं, तो वो एक होती है। पॉजिटिवनेस एंड पैशनेट, पैशनेट अबाउट देयर एम्बिशन, पैशनेट अबाउट देयर लव, पॉजिटिव अबाउट देयर पार्टनर। और अम, और एक चीज जो शायद हम कभी सोचते हैं, आयरनी, तो लेकेसिस के लाइफ ऐसी हो सकती है कभी कभी। पेशेंट्स हमने देखे हैं, सर के क्लिनिक में भी देखे हैं, आयरनी मतलब कि शोकांतिका बोल सकते हैं उसको, मराठी में विडंबना बोलते हैं। तो ऐसी लाइफ होती है कि कुछ नहीं होता है। एक केस, अगर सर परमिशन दे तो मैं बोलती हूँ, सर के क्लिनिक में देखी थी हमने, अपने ऑनलाइन इसमें देखी थी। तो वो पेशेंट के छोटी बच्ची थी, वो बच्ची भी उनकी एक्सपायर होगी, और ये लोग दोनों ही रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड वो कुछ फ्रूट का ठेला वगैरह ऐसे चलाते थे, और उनको कुछ तो कंप्लेंट थी, इसके लिए वो सर के पास आए थे। तो वो उनकी जो सारी हिस्ट्री सुन के जो फील आया था कि क्या है, मतलब कैसी लाइफ है, और कैसे सिचुएशंस आती है लोगों के लाइफ में, तो वो दैट वाज आयरनी जो सर ने सिखाया था। सो यहाँ पे थोड़ा सा फूड फॉर थॉट मैंने लिखा है। ये कंप्लीटली मैंने सोचा है, मुझे पता नहीं आप कौन लोग एग्री करेंगे या फिर नहीं करेंगे, रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो आजकल हम लोग, मतलब ये होमोसेक्सुअलिटी रुब्रिक तो कब का आया हुआ है, क्योंकि 200 years एगो ये रेमेडी अपनी प्रूव हुई है, इसका मतलब। और डॉक्टर हेरिंग ने, जैसे एमएल टाइलर ने भी लिखा है, डॉक्टर हेरिंग सर को कितनी तकलीफ हुई थी जब ये लेकेसिस की प्रूविंग उन्होंने करी थी, क्योंकि वो जो सिम्टम्स है डिलीरियम वाले, हिस्टेरिया वाले, मैनिया वाले, वो सब उन्होंने अ, अनुभव किए थे जब वो प्रूविंग कर रहे थे। तो कितना मतलब ये मेजर रहा होगा। तो ये थोड़ा सा डीप मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने ये सोचने के लिए छोड़ दिया है। आप जो भी, अगर आपको लगे कि ठीक है, सर भी इस पे बात करेंगे। और मुझे लगता है आजकल जैसे बहुत ज्यादा ये आ रहा है ना, होमोसेक्सुअलिटी के केसेस आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा जल्दी अगर हम ये केसेस हमको मिल जाए, तो इसमें हम कुछ उन लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो वो रूब्रिक मुझे ये थोड़े से यूजफुल लगे इन केसेस में, जैसे हम इफेमिनेट यूज करते हैं, या फिर
मैनिश बिहेवियर वाले रूब्रिक्स यूज करते हैं। जो कि गर्ल्स होती है वो लड़कों जैसे कपड़े डालना शुरू कर देती है, या फिर उनको लगता है कि मैं लड़की नहीं, मुझे लड़का होना चाहिए था। तो ऐसी चीजें आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इसके लिए ये कुछ रूब्रिक्स है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर टू throw some light upon this, and this is all from my side. So thank you very much for listening patiently. और कोई डाउट है आपके तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो। थैंक यू डॉक्टर मानसी, थैंक दैट यू। वाज बहुत सारे रूब्रिक्स आपने क्लियर किए। थैंक यू। यस मानसी, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत मजा आया। लैकेसिस मानसी जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता, अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो, नो क्वेश्चंस, नथिंग, राइट? मजा मजा आया ना? मॉकिंग रिडिकुल पैशन फॉर। आपके स्टाइल में एक बार बता दीजिए। क्या मॉकिंग रिडिकुल पैशन फॉर? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं ना, आप बोलते क्या चल रहा है, कैसे आए, तो लोग बोलते हैं ना, हाँ डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अब बीमार है तभी तो आपके पास आते हैं ना लोग, ऐसे थोड़ी कोई आता है डॉक्टर के पास, ऐसे बोलते हैं ना लोग, बीमारी तभी आते हैं ना। दिस इज मॉकिंग रिडिकुल पैशन फॉर। मॉकिंग रिडिकुल पैशन फॉर के अंदर तीन चीजें हैं। मॉकिंग रिडिकुल पैशन, ठीक है, मतलब एक मॉक करेगा, आपकी बात की मॉकरी करेगा। रिडिकुल मतलब क्या करेगा? हंसेगा। रिडिकुलस मतलब क्या? हास्यास्पद। तो उसको चीज को हास्यास्पद बना देगा अपनी चीज को, और पैशन है उसके अंदर ये करने का, मतलब ये इसके अंदर की खुजली है ये करने की। पैशन मतलब जो चीज खुजली ना, पैशन इज खुजली ना। जैसे हमको खुजली ये 100 डेज के बाद में फिर 100 डेज कर रहे हैं तो ये हमारा पैशन है ना। तो ये तो पैशनेटली हम लोग करते हैं ना उसको एकदम, सब कुछ। अभी देखो ना, मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, बाल वाल भी नहीं बने हुए, कुछ नहीं, चल रहा है ना पैशनेटली। और मानसी मैडम देखो पीछे किताबें वगैरह सब कुछ, साड़ी वाड़ी ये वो एकदम। तो दैट इज द वे इट इज, राइट? ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल, मॉकिंग रिडिकल पैशन फॉर। अब लोगों को कहाँ पता चलेगा सर, तकलीफ अपने को होती है, लोगों को कहाँ पता चलेगा? लोगों को लगता है कि ये बीमार नहीं है, ये भी मॉकिंग रिडिकल पैशन है। सर अभी अपने ऊपर से तो दिखते नहीं मैं बीमार, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं ना, ऊपर से तो बीमार नहीं लगता। अब लोगों को कहाँ कैसे बताएंगे सर अपन कि अपन बीमार है? तो शी इज फाइंडिंग, द पेशेंट फाइंड्स द अदर पर्सन्स थिंग ridiculous and then make mockery of it. This is important. Aconite में भी है मॉकिंग रिडिकल पैशन फॉर, डलकामारा में भी है शायद से। Aconite तो मैं बहुत यूज करता हूँ मॉकिंग रिडिकल पैशन फॉर। So this is how it is. It's a very lovely rubric and we use it very often. All the students who are there in my series, who are connected to me, mashallah, we use this MRP, mocking ridicule passion. MRP बोलते हैं हम उसको। Oh, wonderful, Mansi. God bless you. थैंक यू Keep सर। sharing. Bye. Yes, Pranita, yes. Priyanka, over to you. Thank you, Dr. Mansi, for a wonderful lecture and very nice cases of lachesis with very good understanding and very good explanation of lachesis. और बहुत सारी अपनी नई चीजें बताई and with reference to books और जैसे sexuality के बारे में। अभी आज के टुडेज एरा में क्या हम लोग नया ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं रेमेडी को, और किस तरह से इमेज फिक्सिंग नहीं करनी है, और बियॉन्ड द लाइन, बिहाइंड द लाइंस हम लोग को कैसे रीड करना है, और रुब्रिक्स को हम लोग सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना है, मतलब एज अ होल हम लोग देख के रेमेडी तक कैसे पहुंचना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू वेरी मच मानसी, एंड थैंक यू वेरी मच लियाकत सर for adding, and thank you everyone for joining, and do join
our all the lectures, next lecture, and we will be uploading this lecture soon on YouTube also. So you can go once again and watch this. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.